प्रोग्राम 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਨਾਜ਼ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖੀਰ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਾਇਆ, 2 ਸਾਲ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਫਾਲ ਫੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਫੈਸ਼ਨ, ਸਮਰ ਫੈਸ਼ਨ, ਸਪਰਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਖਰਬ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ FDDI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਨੂੜ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਮੈਮ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। बताएं आप शिफाली मैम, फैशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो सत श्री अकाल सबको। फैशन का मतलब है हम जब अच्छे लग रहे हैं, मीन्स लाइक जब आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं और आप अपने आप को बहुत सुंदर लग रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ फैशन। जेंट्स और लेडीज़ का फैशन, इट्स नॉट लाइक हम अलग अलग हैं, बट कुछ फैशन बिजनेस ने हमें इनडायरेक्टली हमें पूरी तरह से ग्रैब किया हुआ है। फास्ट फैशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज करके आपके सामने नए कलेक्शंस लाते हैं सीजन टू सीजन, कि आप उनके लिए इतना अट्रैक्ट हो जाते हो कि आप जैसे ही एंटर करते हो किसी स्टोर में, मॉल में या किसी बड़ी ब्रांड के किसी भी स्टोर में, आप उनको खरीदने के लिए आतुर हो जाते हो। उसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं जिससे पता चलता है, वो कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट तो करती है और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी लाती है विद प्रॉफिट। तो अभी हम उसी चक्कर में, उस फास्ट फैशन के चक्कर में हम फंसते जा रहे हैं। तो अपने आप को सुंदर लगाने के लिए तो बेसिकली फैशन बस अपने आप को सुंदर दिखाना, कपड़ों के थ्रू, एसेसरीज़ के थ्रू, मेकअप के थ्रू और आपके फुटवेयर के थ्रू। तो फैशन यही है। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਨ, ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। फैशन एक शब्द नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे फैशन टेक्नोलॉजी भी होता है। टेक्नोलॉजी में क्या है, फैशन में टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है आपने। रिसर्च के एरियाज़ तो बहुत हो सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लेती हूँ, मतलब गारमेंट या कपड़ा या क्लोथिंग तो हमारे ऊपर रहना ही है, वो हमारी थर्ड स्किन की तरह है। तो हमारी जब थर्ड स्किन है उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज है। अब हमारे जो बॉडी है उसमें हम एक एक्स्ट्रा हैंड तो नहीं लगा सकते, बट क्लोथ में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो हमारी फंक्शनैलिटी को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक ऐसी जैकेट बनाएं जिससे हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो ये एक फैशन में टेक्नोलॉजी का ऐड ऑन हो गया। इस पे आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करके आप रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। दूसरा, जो मेरा अपना टॉपिक था, मैंने अपने PhD में पूरे भारत के लिए प्लस साइज़ की जो लेडीज़ हैं, मेरा बहुत प्रिविलेज है कि मैंने इस पे काम किया, प्लस साइज़ की लेडीज़ के लिए साइज़ चार्ट बनाया है। साइज़ चार्ट का मतलब है, जैसे हम जाते हैं किसी ब्रांड में, किसी ब्रांड का हमें S साइज़ आ रहा है, दूसरे ब्रांड का हमें M आ गया, कहीं 34 लिखा है, कहीं 38 लिखा है,
तो हमें समझ ही नहीं आता हमें किस साइज के कपड़े आएंगे रेडीमेड जो हम जा रहे हैं, तो इससे सब लोग कंफ्यूज हैं। तो इसका कारण यही है कि हम ज़्यादातर मतलब अभी तक भी जो हमारे यूके के यूएसए के जो साइजेस थे उनको यूज़ कर रहे थे इंडिया में। यूएस के बंदे की हाइट अलग है, उसकी सारी मेज़रमेंट अलग है। इंडियन हमारे जो हैं भाई बंधु उनके सब साइजेस अलग हैं, तो उनके साइज़ हम अपने बंदों पे लगा रहे थे तो गलती होंगे। तो वो एक कारण था जिसकी वजह से बहुत लोगों को अपने पूरे फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ मिलके और निफ्ट ने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऑल इंडिया के लिए अपना खुद का साइज चार्ट बनाएंगे जो हमारे लोगों के लिए होगा। तो इस तरह से 25,000 लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया, अराउंड 200 मेजरमेंट्स ली गई हर इंसान की 3D बॉडी स्कैनर की मदद से। 3D बॉडी स्कैनर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे इंसान खड़ा हो जाता है, उसको हम मेज़र करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। हम उसको उसके मेज़रमेंट का चार्ट बनाते हैं और उस बेसिस पे वील मेक अ स्टैंडर्ड चार्ट जो हमारे उसी में मेरा योगदान ये रहा कि मैंने जो प्लस साइज वुमेन हैं उनके लिए इंडिया का साइज चार्ट डेवलप किया। तो ये एक रिसर्च एरियाज़ फैशन में हो सकते हैं और देर आर मैनी मोर और भी हमारे पास हैं, जैसे कि आप डाइज़ के थ्रू न्यू डाइज़ बना सकते हो जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहेंगी। और जैसे बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कुछ ऐसे केमिकल्स हार्म कर सकते हैं, वो दुनिया में अभी आया है, तो उनके लिए सॉफ्ट क्लोथिंग उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इस डायरेक्शन में भी काम किया जा सकता है फैशन में। फैशन में हम काम कर सकते हैं जैसे कि डिज़ाइनिंग में, हमारे पास आज शेफाली मैम है, वो डिज़ाइनिंग में काम करते हैं। जैसे ऐसे हम कुछ डिज़ाइन करें जो फंक्शनल भी हों। हमारे पास अब जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जब हम क्लोथिंग बनाते हैं तो वो ऐसे पर्पस भी उनका सोल्व हो जाए क्लोथिंग के साथ, क्योंकि क्लोथिंग तो उन्होंने पहननी है। बहुत एवेन्यूज़ हैं फैशन के रिसर्च में और आप बहुत तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल गल सही है थोड़ी डॉक्टर अनु। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 34 ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜਣਾ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨੀ ਪੈਂਟਸ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿਨੀ ਲੈਗਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜੈਗਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਛੱਡਤੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਗੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦ ਪੋਕਟਸ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿਲਕਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਵੀ ਢਿਲਕੀ ਹੈ है ना, ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ भी है तो दूसरों को ऐसे अनकंफर्टेबल कर रहा है कि भाई जी। हाँ जी, अगर हम बात करें कि स्किनी जीन्स थी और अब हम उसको बैगी क्लोज आ गए, तो जब कोई भी फैशन चेंज होता है उसके लिए 2 या 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर, अगर हम जब अब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि फ़ैशन साइकिल, और फैशन साइकिल में
छोटा साइकिल और बड़ा साइकिल, 2 साइकिल्स होते हैं। तो यूथ जनरली छोटे साइकिल पे काम करते हैं, जिनको हर थोड़े टाइम के बाद चेंज चाहिए होता है। तो वो फैशन बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसी बेस पे पूरा फैशन का जो वर्ल्ड है, जो पूरे वर्ल्ड में इतना छाया हुआ है, फैशन का जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो उसी पे काम करता है। ह्यूमन नेचर होता है कि उसको थोड़े टाइम के बाद कुछ चेंज चाहिए। तो बैगी पैंट्स का हम जब बात कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी रहा कि जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो लोगों को कंफर्टेबल क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ी, और कंफर्टेबल एंड लुकिंग स्मार्ट वाली क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ी। डिज़ाइनर ने उस पॉइंट को क्लिक किया एंड फैशन बिजनेस ने उसको अडॉप्ट किया, और वो हमने एक कलेक्शन लेकर आए जो लोगों को भी पसंद आ रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था, और विद पॉकेट्स था। अब पॉकेट्स जो है वो फंक्शनल है, आपके फ़ोन्स हैं, चार्जर्स हैं या ईयरबड्स हैं, आप कैरी कर सकते हो। तो क्लोथिंग जो है वो लुक्स के साथ साथ फंक्शनल भी हो गई, जैसे मैम ने बोला टेक्निकली। तो जब हम अब उसके बाद बात आती है तो हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग। अब एवरी टाइम जब हम अलग अलग ओकेजन्स पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो हम ट्रैक पैंट्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैगी था वो ट्रैक पैंट और आपका जो ट्राउज़र था उसका कॉम्बिनेशन था, जिसमें आपको फैसिलिटी मिल रही थी कंफर्ट की, उसके साथ साथ वो फंक्शनल भी हो गई कि हमने उसमें पॉकेट्स ऐड कर दिया, तो आपको एक्स्ट्रा जो भी सामान है यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट्स, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ही हमारे फ़ोन में आ गई। तो एक फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसका चार्जर हमें कैरी करना है। तो दीज आर द थिंग्स जो मोटिवेट करता है फैशन को। डॉक्टर अनु, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताओ कि इतने सारे कपड़े हो गए है ना, प्लस साइज ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਲਕਾ ਡਾਟਸ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲਕਾ ਡਾਟਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਨ ਢਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਜਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡਫਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूशन कर रही है वर्ल्ड में। ये बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फैशन लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब हमें सेम टाइम पे फैशनेबल भी रहना है और सस्टेनेबल भी रहना है, उस केस में हमें कुछ ऐसे डिज़ाइन वेरिएशंस करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर वर्किंग ऑन रिसर्च एक क्लोथिंग दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि एक स्कर्ट एक बार आपने यूज़ कर ली बहुत टाइम, अब आपका फैशन चला गया या मन भर गया, देन आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए कोई अदर यूज़ में। जैसे स्कर्ट को आप बैग बना लीजिए, ये रीयूज़ भी हो सकता है। रीसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट भी एक है। रीसाइक्लिंग में जैसे लिवाइस है, हमारे पास पेट बोतल से वो डेनिम ट्राउज़र्स बना रहे हैं उसको रिसाइकिल करके। तो बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो आजकल के हमारे कंज्यूमर हैं वो भी बहुत अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है और हमें ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म कर रही हैं और कम से कम चीज़ें वहाँ से ली जा रही हैं। जैसे हमारे पास पेट्रोल भी लिमिटेड है और हमारे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कॉटन वगैरह प्रोडक्शन भी कम होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम क्लासिक डिज़ाइंस पे काम करें। क्लासिक डिज़ाइन होते हैं जो कि बेसिक डिज़ाइन है, जैसे हमारा सलवार कमीज़, वो तो रहना ही है एक तरह का डिज़ाइन। एक डेनिम ट्राउज़र हो गया जो बेसिक है, वो उस तरह के क्लोथिंग पे भी काम किया जा सकता है। वो हम सीज़न दर सीज़न पहन सकते हैं क्लासिक्स। और कुछ फैशन जो हमारे पास रहते हैं बिल्कुल हाई फैशन,
उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद चेंज हो जाते हैं। हाई फैशन, जैसे अभी क्रॉप टॉप का चलन बहुत है गर्ल्स में, तो वो थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की क्लोथिंग को हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम अपने वार्डरोब को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, कुछ क्लासिक्स जो हमेशा चलेंगे, कुछ हाई फैशन ले लिए जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में दूसरे किसी क्लोथिंग में, कुछ चीज़ें हम एज अ डोनेशन के रूप में जो नीडी लोग हैं उनको डोनेट कर सकते हैं लैंडफिल को बचाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स को हम अपना रिसाइकिल में लगा सकते हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह से हमें अपना पूरा एक प्लेटर रेडी करना होगा जिसमें हम ये सब चीज़ें करके उसको ज़्यादा सस्टेनेबल बना के और लैंडफिल्स को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गल थोड़ी सही है कि ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ सस्टेनेबिलिटी वाल वेखांगे ਤਾਂ ही अच्छा रहेगा। शिफाली मैम, आप बताओ हमें ये बात कि टैक्नोलॉजी क्या हेल्प कर दी है, क्योंकि जिवें मैम ने दस्सिया कि बहुत सारिया जीन्स ने वो पैट बॉटल्स यूज़ कर रही ने, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा ਜਿਹੜਾ पॉलीथीन यूज़ हो रहा एक तरह ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ कि पॉलीकार्बनस जिन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ यूज़ हो रहे ਨੇ। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 65% ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਬਰਸ, ਇਹ मैन मेड फाइबर्स ने और केमिकल्स ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं। बिल्कुल सही कहा, जैसे मैम ने सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें जाना है और उसको एडप्ट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अभी ब्रांड्स जो है वो इसके लिए अवेयर हो गए आफ्टर कोविड कह सकते हैं हम, और जो कस्टमर है वो भी बहुत अवेयर हो गया है। वो जब शॉपिंग करता है तो वहाँ पे टैग के साथ एक डिटेलिंग होती है जिसमें कौन से आर्टिजन ने उसको बनाया है, किस प्रोसेस से वो बन के आया है, कौन सा उसमें फाइबर इंक्लूड हुआ है, वो सब उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी कस्टमर उतना अवेयर हो गया है, अगर उसको लगता है कि वहाँ पे ऐसा हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल उसमें फाइबर सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा लगा है या उसकी फिनिशिंग या उसकी प्रोसेसिंग में कुछ ऐसा गया है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो उसको कम परचेस कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स है लाइक ज़ारा, H&M, ये वो ब्रांड्स हैं जो फास्ट फैशन बनाते हैं, बट इन्होंने एक नया अडॉप्ट किया है जिसमें वो जो अपना ही गारमेंट है उसको वो वापस लेते हैं कुछ परसेंटेज पे और उसको रिसाइकल करके, बहुत सारे अरविंद है, ये ब्रांड्स वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी बहुत सारा वेस्टेज हमें देखने मिलता है जो हमारी रिवर्स को गंदा कर रहा है। जैसे चेन्नई का बीच अगर देखें तो वहाँ पे बहुत पॉल्यूटेड हो गया है सी जो है पानी, ओशन। तो उसके लिए अभी बांग्लादेश में ये प्रैक्टिस चल रही है कि हम जो नेचुरल सोर्सेज हैं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उनका एक्सेस वाला यूज़ है उसको ख़त्म करें। तो उसके लिए समुद्र में सोलर पैनल्स के बोर्ड्स बनाए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो उसमें सोलर पैनल्स यूज़ हो जाएगा, तो वो एक कंजप्शन कम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम जनरली बात करें कि हम एज अ लेमैन घर में हम कैसे उनको यूज़ करते हैं, तो हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं ना, जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते हैं, तो हम अगर एंशेंटली बात करें, हम दादी की बात करें या हमारी नानी बात करें, तो वो क्या करते थे, वो पुराने कपड़ों को लेकर के कट करके उनके ऊपर डिफरेंट क्राफ्ट करके ब्यूटीफुल बना के और उनको अदर यूजेस में यूज़ करते थे, लाइक फ्लोर कवरिंग के लिए, टेबल कवरिंग के लिए, आपके ऑर्नामेंट्स को रखने के लिए। तो हम एक वो प्रैक्टिस जो है उस प्रैक्टिस को हमें वापस लाना पड़ेगा ताकि हम एनवायरनमेंट को कम से कम करें, रीयूज़ करें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी हम जैसे फैशन में बच्चों को बताते हैं तो ड्रेपिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम बच्चों को पुरानी साड़ीज़ या पुराने कपड़ों को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, रीयूज़ कैसे करें, उनसे रीडिज़ाइन कैसे करें, वो सारी टेक्निक्स उनको बता रहे हैं। तो एक वो टेक्निक है जो हम इनबिल्ट हम उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद जैसे मैम ने बोला कि डिज़ाइनर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अगर डिज़ाइनर्स उस वे में जाएंगे जिसमें हमारा जो लैंडफिल्स भर रहे हैं वो कम हो जाएगा, और हम रिसर्च में जाएंगे कि हम अभी हम जैसे बात करें, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डाइंग के लिए यूज़ होते हैं। एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें वो सारी टेक्निक्स हम नेचुरली यूज़ कर रहे थे।
हमें वापस रिसाइकल, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि हम एक फैशन साइकिल यूज करते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को साइकिल पे जाना पड़ेगा, हमें एंशियंट वे को वापस लाना पड़ेगा, ताकि हमें वो सारी चीज़ें दोबारा, हम एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, अपनी स्किन को कम से कम पहुंचाए, और वो लैंडफिल्स जो है वो ख़त्म हो जाए, वो वाला। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਟਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਟਨ ਕਲੋਥਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵਰਾਇਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਤਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਨੇ, ਟੋਵਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੋਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਦ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ फ़र्क है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मैम ਇਹਦੇ बारे? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पहले सिल्क की क्वालिटी थी, वो सिल्क की क्वालिटी अभी की सिल्क की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। हमने एग्रीकल्चरली ग्रोथ तो बहुत किया है और बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को तो मिलेगा, क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। और हम जब बात करते हैं कि सस्ता फैशन, सस्ता फैशन अगर हम बात करेंगे तो हम क्वालिटी में कहीं ना कहीं हम डिटोरिएट होंगे, और हमने अपने फैशनेबल क्लोथ को मास में पहुंचाने के लिए हमने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वहाँ पे हम केमिकल बेस्ड और हमने मैनमेड फाइबर्स भी यूज़। पर अगर हम बात करें कि मैंने फिर से कहा कि डिज़ाइनर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। एक स्पेसिफिक टेलर होता था, उसको कुछ भी कपड़ा ला के दो, वो कुछ ना कुछ बना के दे देता था। तो अगर हम वैसे ही उसी टेक्निक्स पे जाना चाहें और हम उनको मोटिवेट करें तो शायद हम रिड्यूस कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है लोगों में। एक्चुअली कॉलेजेस में बच्चे एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, जो ज़्यादा न्यू बार बार ड्रेस को रिपीट नहीं किया उसको बहुत अच्छे से अप्रिसिएशन मिलता है, या उसको बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है, या कोई रिपीट कर रहा है तो उसको लगता है कि इसके पास तो कपड़े। बट मुझे लगता है कि अब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हम सबको ये अवेयरनेस लेकर आए कि रीयूज़ करना या रिड्यूस करना, या फिर आप बार बार उसको रिपीट करना इज़ नॉट लाइक कि आप रिपीट कर रहे हो तो यू आर नॉट फैशनेबल। अभी एक स्टाइलिंग एक टेक्निक है जिसमें बच्चे को ये सिखाते हैं हम लोग कि एक ही कुर्ते को आप डिफरेंट वेज में 1-2 चेंजेस के साथ कैसे पूरा वीक चला सकते हैं, और आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप एक ही कपड़ा रोज पहन के आ रहे हैं। तो हमें उन टेक्निक्स पे काम करके हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, बट वही है कि हमें सबसे पहले बच्चों को अपने आप में ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोशिश भी करनी चाहिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਕਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ हैं।
ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਫੇਦ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोचते हो? रिड्यूस में क्या कर सकते हैं, जैसे टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक पैटर्न मेकिंग होता है जिसमें हम भी गारमेंट बनाने के पहले उसका एक खाका बनाते हैं एक पेपर पे, उसको पैटर्न मेकिंग बोलते हैं, और उसी के अनुसार फिर हम उसको स्टिच कर देते हैं। तो जब हम पैटर्न मेकिंग बनाते हैं ना तो हमारे पास कपड़ा कतरन बचती है। टेलर के पास आपने देखा होगा, उसने कपड़ा काटा और कतरन फेंक दी, तो उसको बोलते हैं एक कपड़े का वेस्ट, वो वेस्ट ही हो गया। अब हमारे पास ऐसी टेक्निक है टेक्निकली जिसको जीरो वेस्ट पैटर्न मेकिंग बोला जाता है, कि आपने सारा का सारा कपड़ा यूज़ करना है कपड़ा बनाने में, मतलब गारमेंट बनाने में, कोई भी कतरन नहीं बचेगी, उसको ज़ीरो वेस्ट बोला गया है। तो उस तरह की टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। वो साथ में स्टाइलिंग भी करते हैं, नए स्टाइल उससे बनते हैं। मेरा जो अभी अपकमिंग रिसर्च है वो इंडियन कुर्ते को लेके है। इंडियन कुर्ता जो हमारा सूट सलवार रहता है, तो जो ऊपर का कुर्ता जो स्टाइल है उसको हम ज़ीरो वेस्ट पैटर्न मेकिंग से बनाएं, उसमें कोई वेस्ट ना आए। उससे हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो कतरन वेस्ट में नहीं जाएगी लैंडफिल में, दूसरा फैब्रिक की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है किसी गारमेंट में भी, उस पे बाकी चीज़ें स्टिच वगैरह ये इनकी कॉस्ट कम है। तो फैब्रिक अगर हम बचा रहे हैं तो बहुत कॉस्ट बचा रहे हैं, वो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है। और इससे हमारा ये भी नहीं होगा जो मैनेज करना है, कतरन को कहीं फेंक के आना है, उससे भी तो एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, वो सब चीज़ें एक साथ ही रिड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसे स्टाइल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टेक्निकली, इस तरह की टेक्निक करके हम रिड्यूस कर सकते हैं फैब्रिक की यूसेज। जैसे आपने देखा होगा कई बार, कई टेलर आप पूछते हो ये अच्छा टेलर है, ये 2 मीटर में भी सूट बना दे, कुछ टेलर बोलते हैं कि नहीं हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए, इसके लिए 4 मीटर तो 7 मीटर 7 मीटर चाहिए। यही डिफरेंस आता है कि वो टेलर ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उनको किस तरह से पैटर्न को बिठाना है वो चीज़ों में और एक्सपर्टीज हासिल करके उस वेस्ट को कम करके कम से कम कपड़ा यूज़ करा जाए गारमेंट को बनाने में। तो ये एक तरीका हम बहुत मास स्केल पे अडॉप्ट करने से बहुत हमारी वेस्टेज रुक जाएगी। बिकॉज आप देखिए फैब्रिक का 15% ऑफ कॉस्ट फैब्रिक का है, मतलब हम बचा सकते हैं इस तरह की टेक्निक को यूज़ करके। दूसरा ट्रांसफॉर्मेबल गारमेंट्स, जो मैम बोल रहे थे, एक ही कुर्ते को दोबारा से हम डिफरेंट स्टाइल से यूज़ करते हैं। जैसे DIY टेक्निक देखे होंगे, एक स्टोल को आपने ऐसे रैप कर लिया, फिर सेकंड डे आपने दूसरे तरीके से, जैसे साड़ी को भी हम डिफरेंट स्टाइल से रैप कर सकते हैं। तो वो सेम टाइम पे स्टाइलिश भी है, फंक्शनल भी है, और किसी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि एक ही चीज़ बार बार पहनी जा रही है। तो सेम साड़ी को हम ड्रेपिंग के तरीके से अलग अलग गारमेंट बना सकते हैं। पहले यही होता था, वेस्ट नहीं होता था, साड़ी था, ब्लाउज भी पहले उतना स्टिच नहीं, सीधा साड़ी को ही हम रैप करते थे एंशिएंट टाइम में। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से ये वेस्टेज कम था। तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं इस तरह के रिडक्शन के लिए। और जो कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे ऐड ऑन हो रहे हैं टेक्सटाइल से, सो अगर हम प्रिंटिंग डाइंग की तरफ अगर बात करेंगे तो उसमें हम अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें। हालांकि वो डाइज कभी कभार उतने फास्ट नहीं होते, बट लाइट कलर में हम यूज़ करे जा सकते हैं, वो स्किन फ्रेंडली हैं, न्यूबॉर्न बेबी के लिए अच्छे हैं। तो इस तरह सब वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਟਰੈਸ਼ਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੇਲਰਸ ਐਂਡ ਡ੍ਰਿਪਰਸ,
ਹਨਾ। ਤੇ ਡਰੇਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਟੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੇਪਿੰਗ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿਆ ਆर्ट सिखाई नहीं जाती या लोग सीखते नहीं, प्रेफरेंस नहीं है? देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि ड्रेपिंग जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है एंड वो आर्ट सिखा रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें एफडीडीआई में फैशन डिपार्टमेंट की, तो हम बच्चों में वो इनबिल्ट डाल रहे हैं कि जब वो गारमेंट्स की टेक्निक सीख रहे, बेसिकली 2 टेक्निक्स होती हैं हमारे पास पैटर्न मेकिंग की, जैसे मैम ने बताया खाका बनाना, तो एक पेपर पैटर्न मेकिंग होता है और एक ड्रेपिंग। ड्रेपिंग जो होता है वो कस्टमाइज होता है कि आपकी बॉडी पे ही हम वो कपड़ा डायरेक्टली ड्रेप करते हैं और उसको वहीं पे मार्किंग लेकर के और उसको फिटेड बना। ड्रेपिंग में ही हम स्टूडेंट्स को हम ये बता रहे हैं कि आप अपने पुराने कोई भी गारमेंट्स, जैसे जीन्स हैं जो ओल्ड फैशन जीन्स हैं, वहाँ से बहुत सारे कपड़े निकल सकते हैं, उन फैब्रिक्स को ही यूज़ करके कैसे आप नया गारमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक वो टेक्निक हम बता रहे हैं। अगर आप बात करें बुटीक्स की, तो अभी मुझे लगता है कि कई डिज़ाइनर्स हैं, मैं अपना ही एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे कई क्लाइंट, जब मैं अपना काम कर रही थी या फैशन में काम करते हैं, तो मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे थे जो अपनी पुरानी साड़ीज़, पुराने सूट्स जो उन्होंने अपने भाई की शादी में पहने थे या उन्होंने अपनी खुद की शादी में लहंगा पहना था, तो करवा चौथ पे पहनना है। एक एग्जाम्पल है ये, एक मेरी क्लाइंट थी, वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मुझे ये लहंगा बहुत पसंद है और मुझे इसको रीयूज़ करना है, मेरा करवा चौथ का फास्ट है तो मुझे उस पहनना है। हमने उसको, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो उन्होंने फिर और 2-3 ड्रेसेस दी। एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने 5 अपनी मम्मा की साड़ीज़ लेकर आई और 5 ड्रेसेस बनवाई। पहले भी बोला और मैं अब फिर से बोलूँगी कि अगर हम डिज़ाइनर्स डिसाइड करें जो बुटीक्स में हैं, तो हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को नया फैब्रिक ना खरीद कर वो अपने गारमेंट्स जो पुराने कपड़े हैं उनको लेकर आए। अगर आप बात करें सोशल मीडिया पे, तो अभी बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं या स्टाइलिस्ट हैं जो लोग कपड़ों को रीयूज कर रहे हैं। इंस्टा पे मैं जिनको फॉलो करती हूँ, नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, बट वो हर रोज एक नई ड्रेस साड़ी से बना करके डालती हैं। तो ये एक मोटिवेशन है। अगर हम शुरू हुए हैं तो हम उनको भी एक मोटिवेशन में ले सकते हैं। जैसे हम फुटवेयर की बात करें, तो फुटवेयर में ब्रांड है नीमन्स करके, वो ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ करके बहुत अच्छे फुटवेयर्स बना रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स या ऐसे स्टार्टअप्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें शॉपिंग में उन्हीं ब्रांड्स को खरीदना चाहिए। जैसे मैंने बोला टैगिंग्स में होता है, टैगिंग्स में आप प्रोसीजर देखते हैं, तो अगर ये सब हम करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक हम एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत हेल्प करेंगे इंडिविजुअली। बिल्कुल गल सही है कि फैशन ਦਾ फैशन रहेगा ही, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਐਂਡ ਰੀਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ FDDI यानी कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट ਬਨੂੜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।